Welcome students to the session of panoramic physics. Students, today our topic of discussion is electrostatics. This is a revision series which we are starting with you people. It's a quick revision series for your electrostatics. Following points we'll cover in the first part of electrostatics. This important unit has lot of contribution in your board exams as well as your competitive exams. So listen each and aspect carefully. Let's start with charges. Coulomb's law, and we proceed likewise to electric field lines, electrostatic potential, concept of dipole and introduction of flux. What are charges? Charge क्या चीज है? Student, charge is a fundamental property of a matter. Basically, charge is that characteristic in space which produce a force of attraction or repulsion on another charge, in its surrounding. It is always carried by a particle. So mass and charge are two fundamental properties. These are your charges. It has few properties of charges. Charges have two basic properties. One is your quantization. Another is your conservation. Quantization का मतलब होता है charge will exist in a discrete packets, discrete bundles of a fundamental charge. ऐसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, it is Q equal to plus minus Ne, that is, it is equal to like that integral multiple of, इसे लिख लीजिए, integral multiple of a smallest fundamental particle, like plus minus 1e, plus minus 2e. Here E is the charge on electron. Now, what is Coulomb's law? Coulomb's law हमें बताता है दो चार्जेस के बीच की फोर्स के बारे में. What is the basic force between the two charges? And that is given by Q1 upon Q2 into R square. This is what the Coulomb's law comprise of. Coulomb's law हमें ये बताता है कि force between two charges exist in space, that it be Q1, this will be Q2, and there is a distance R. F is equal to K Q1 Q2 upon R square. Here K has a value 9 into 10 to the 9 Newton meter square Coulomb square, या charge square. So this is your electrostatic force between the two charges, which is given by Coulomb's law. ये पॉइंट चार्जेस के लिए होता है, रिमेंबर इट इज फॉर पॉइंट चार्जेस. एंड सेकेंडली कूलम लॉ हमें और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है इन इट्स वेक्टर फॉर्म. इट फॉलोज द प्रोसीजर ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एनीवे, नाउ लेट्स मूव टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड हाउ वी हैव टू डील विद देम. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हर पॉइंट पे अगर हम एक पॉइंट बी की डायरेक्शन देखें तो इट इज ऑलवेज टेंजेंट टू दैट पर्टिकुलर लाइन. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी लाइंस. नंबर वन थिंग इज दे आर इमेजिनरी लाइंस, एंड एट द पॉइंट, at particular point P or Q, the tangent to these lines will give the direction of those lines. Tangent यहाँ पे हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में जानकारी देता है. Tangent to these lines. Second, no two electric lines of force intersect. ये कभी भी intersect नहीं करती है because it will lead to two directions, which is not possible. Simultaneously दो डायरेक्शन एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकती. अगर पॉइंट P की बात करें तो it will go to PA and at the similar time it will move to PB, which is practically not possible. So never intersect. Third thing about these lines, which is most important concept for this line, कि दो अगर
सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कहीं पे, रीजन 1 एंड रीजन 2, जहां पर ये ज्यादा कंजेस्टेड हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आर लेस कंजेस्टेड। जहां पे ज्यादा फील्ड लाइंस हैं, स्ट्रेंथ विल बी मोर वेयर द लाइंस आर मोर। स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड लाइंस विल बी मोर where they are less separated from each other। अगर ये less separated हैं एक दूसरे से तो you can see that is at that region, suppose यहां से अगर यहां की बात करें 1 2 3, so यहां पे less separated हैं, तो region 1 has more strong electric field than the region 2, and moreover they not form the continuous loops, ये continuous curve या closed curve, sorry, they don't form the closed curves। Now let's go for another concept, that is your electrostatic potential। So we have revised with charges is the fundamental unit of matter में एक मास और चार्ज हमेशा जहां पार्टिकल होगा वहीं एग्जिस्ट करेगा। कूलम्स लॉ ने हमें इंफॉर्मेशन दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करते, दे आर द इमेजिनरी लाइंस एंड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट देयर इज अ टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दोस फील्ड लाइंस। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल is due to position। Electrostatic potential, we can study electrostatic potential energy first। Electrostatic potential energy क्या बोलती है? Electrostatic potential energy बोलती है कि फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में if we move इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है A to B किसी चीज को मूव करने के लिए, then work done by that, work done in moving that thing from A to B is basically equal to the potential difference between those points। उनके बीच का जो potential difference होगा वो उसके बराबर होता है। That's what is your electropotential energy state। Means work done in bringing a charge, work done in moving a charge, work done in moving a charge from one point to another। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करें, if we go for external force यानी B से A को हम चार्ज को मूव करें तो it will be given by the negative, that is negative work done is equal to your change, that is delta U, change in your potential energy जो है work done के बराबर होगी in moving a charge। obviously we'll move a point charge from there। लेकिन infinity पे हमारी जो पोटेंशियल होता है V infinity पे पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो अगर हम इन्फिनिटी वाले केस की बात करें तो पोटेंशियल इज सिंपली given by this। तो पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सा फार्मूला है वर्क डन पर यूनिट, वर्क डन ऑन अ चार्ज, वर्क डन ऑन अ चार्ज इज गिवन बाय अस बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो by knowing the knowledge of electrostatic potential we will move further to इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और यू कैन से इट इज वर्क डन ऑन अ चार्ज। सो दीज आर द फॉर्मूलाज व्हिच यू कैन यूज फॉर पोटेंशियल एनर्जी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू चार्ज R1। रेडियली अगर चार्ज ऐसे है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो इट इज Q1 by R1, एंड इफ देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस सिचुएटेड there can be addition of charges Q1 by R1, Q2 by R2 and so on। This is the way you can find the potential। Before moving to your electric dipole, let's once more see what is electric potential energy and electric potential। Electric potential energy is that when a charge moves from one location in electric field to another point, and the work done in that is the integral from A to B, that is dot product of force and displacement, or F cos theta ds। Here ds is a small displacement of a work done in displacing a charge from one point to another, and your potential is basically kq by r।
Now, what is the relation between electric field and potential? Electric field और potential का आपस में क्या relation होता है? We have to see that also. What is the relation of electric field with potential? Basically, potential word itself says, क्या ये हमें बताता है, जानकारी देता है किस चीज की, कि कितना पोटेंशियल होगा, कितना पोटेंशियल होगा मींस कितना उस चीज पे वर्क डन कर सकता है कोई भी फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड डज सम वर्क ऑन चार्ज, चार्ज पे कुछ ना कुछ कार्य करता है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज डेफिनेटली रिलेशन विद द पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल बेसिकली है स्केलर एंड रिप्रेजेंट करता है वर्क डन ऑन चार्ज. अगर हम एक लाइन में कहें तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और रिप्रेजेंट करता है वर्क डन ऑन चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वर्क डन किया जाता है दैट इज बेसिकली पार्शियल डिफरेंशियल. अगर हम 3 डायमेंशन में इसे कंसीडर करें तो इट इज अ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा एक्स, that is partial differentiation of delta v upon delta x, sorry, for x axis, and again y, and it is again z. Okay. That shows कि in field, electric field में it is a gradient of potential. Electric field is basically a negative ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे हमने माना है हर चीज मूव करेगी. तो ऑब्वियसली अगर इसका ग्राफ वाइज देखा जाए तो अगर पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ नहीं तो इट विल बी माइनस टेंजेंट थीटा. ये इसका ग्रेडियंट है, नेगेटिव इसलिए वैल्यू है, इट इज ऑन द डिक्रीजिंग स्लोप for this particular thing. So electric field में minus dV upon dr आएगा. That shows कि अगर high potential to low potential अगर charge move करता है तो it is given by, that is potential at A is greater than potential at B. So we can write that is B minus BA is less than 0. वो तभी होगा जब potential at A जो होगा greater होगा पोटेंशियल एट बी से. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रिलेशन वी राइट इट आल्सो लाइक दैट V इक्वल टू E इंटू डी. हम इस रिलेशन को लिखते हैं एंड दिस इज फॉर योर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस फॉर्मूले को बहुत बार यूज करोगे, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल, क्योंकि फील्ड के अंदर चार्ज कहीं ना कहीं मूव कर रहा है, देयर सर्टेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज एंड दैट इज बेसिकली अ पोटेंशियल. ये फॉर्मूला हमें पोटेंशियल की डेफिनेशन भी बता रहा है कि हाउ मच पोटेंशियल कैन बी, हाउ मच वर्क कैन बी डन ऑन ए चार्ज. या पोटेंशियल बोल लीजिए या वर्क डन ऑन ए चार्ज बोल लीजिए, दिस इज द सेम थिंग ओनली. सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन विद द पोटेंशियल. नाउ कम्स द कांसेप्ट ऑफ डाइपोल. सो स्टूडेंट्स, now let's study with the concept of dipole. Dipole is basically a system of charge in electric field. में एक system of charge है which is separated by a fixed distance. इनका distance of separation बिल्कुल fixed होता है और center of dipole से दोनों charges equal distance पे होते हैं. And dipole is always from नेगेटिव टू पॉजिटिव. ये हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर रहेंगे. डाइपोल इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. इसमें दो तरह की लाइन हम पढ़ेंगे. बट इज एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल के कारण क्या होगी, व्हेन डाइपोल इज अलोंग द एक्सिस, दैट इज योर एक्सियल लाइन, एंड line perpendicular to your axial line from the center of dipole, that is your equatorial line, where we find the electric field intensity. तो डाइपोल में वैसे देखा जाए तो the charges are equal and opposite and net force on the entire system seems to be zero. But this field, this system itself is a
full system which will exert a force on another charge in its vicinity, a type of unit positive charge अगर consider करेंगे या negative charge consider करेंगे, depends what type of charge we consider. So electric intensity to axial line is 2p by r cube, या हम simple कह सकते हैं is proportional to 1 by r cube, and here in case of equatorial line it is p by r cube. That is, it is जब इनका रेशियो निकालेंगे axial to equatorial, that is 2:1. But common thing is that in both the cases, here you can easily see electric field here is 1 by r cube. While in case of Coulomb's law, we have studied that electric field varies with the distance square. Here it is distance cube. ये क्या शो करता है कि electric field will deteriorate, finish gradually, खत्म होता जाएगा at much faster rate as compared to electric field by Coulomb's law. यहाँ पे जल्दी से electric field खत्म हो जाएगा. Reason being because here the power of 3 is there. Now electric dipole को अगर हम किसी system में रख दें, we'll keep it in certain system, that is अगर हम इसे dipole being a definition में अब क्या बनता है ये magnitude of either charge into distance of separation between them. क्योंकि अभी हमने डाइपोल के बारे में जाना तो इसकी डेफिनेशन वी कैन ourselves हम कंक्लूड कर सकते हैं कि magnitude of either charge into distance of separation between them. Magnitude of either charge, इसे ऐसे लिख सकते हैं, magnitude of either charge into distance of separation between them. इसको सिंबल है इसका P. P vector, that is it is a vector quantity. जब इस पूरे सिस्टम को हम फील्ड में रखेंगे, we keep this system in certain field, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑब्वियसली इसमें दो तरह की फोर्सेस लगेंगी, इक्वल एंड ऑपोजिट, जिसके कारण इसमें एक टर्निंग एक्शन आएगा, दैट इज इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, यानी टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस E, where P is a डाइपोल मूवमेंट. यार इसकी वैल्यू हमारे पास जो आती है कैलकुलेट करके, P E sin थीटा, दिस इज योर टॉर्क, एंड पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल इज गिवन बाय फार्मूला P E cos थीटा या cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1. अगर हम डाइपोल को छोटे से एंगल से रोटेट करें तो टोटल वर्क डन होता है I d थीटा, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट का काम एंगुलर वे में होगा, यानी थीटा के कारण होगा, तो dw I d थीटा, इसके कारण ही वी कंक्लूड अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी. अब इसमें खास बात होती है इन केस ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम यहाँ बात सिंपल डाइपोल टॉर्क की बात करते हैं तो थीटा 0 के केस में द टॉर्क इज 0, एक्सटर्नल फोर्स इज 0, बट इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आल्सो cos 0 it comes to be minimum potential energy, that is here it comes out to be minus PE. यानी थीटा 0 के केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और अगर टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा, देयर विल बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. अब बात करते हैं थीटा इक्वल टू 90s में टॉर्क हेयर विल बी मैक्सिमम टॉर्क, बट हेयर इन केस ऑफ cos 90 here the energy, potential energy is almost negligible, nil, 0. In case of 180 degree, here again the equilibrium will be a changed, it comes unstable equilibrium, and potential energy की अगर हम यहाँ बात करते हैं, not of torque but of potential energy, it comes out to be plus UE or plus PE, that is your, here the energy is maximum, means this equilibrium will be unstable, because अगर उसको थीटा को हम किसी भी 0 या 180 के अलावा रोटेट करने की कोशिश करते हैं डाइपोल में, तो वर्क डन इज I d थीटा, वो कोशिश करता है अगर 0 के आसपास हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव करने की, एंड इट इज मोर देन अदर देन दैट 90 से अगर क्रॉस कर जाता है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हमें मिलता है. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम रहती है एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम रहता है. इन केस ऑफ 180 डिग्री इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. एंड टॉर्क इटसेल्फ, अगर सिर्फ टॉर्क की बात की जाए तो टॉर्क नॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डोंट कंफ्यूज इट विद पोटेंशियल एनर्जी. इन केस ऑफ ओनली टॉर्क वी आर टॉकिंग अबाउट, तो टॉर्क के केस में इज मैक्सिमम टॉर्क इज गिवन व्हेन थीटा इज 90 डिग्रीज हियर, एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 दैट टाइम.
So students, this is about your electric dipole. Now the most important and interesting concept before moving to that concept of your introduction of flux and one more, that is your Gauss law. Due to that, let's just consider, as we have studied about electric field lines, we have studied about dipoles. One more important topic, that is your equipotential surface, which I shall introduce in your potential वाले में मुझे introduce करना चाहिए था. Equipotential surfaces are those which having the equal potential. So total work done in moving a charge in equipotential surface is zero. That was part of your electric potential only. Now let's start with a very interesting topic, that is known as electric flux. Flux क्या है? Flux है फील्ड को जब हम एरिया के साथ लिंक कर देते हैं. when we link the electric field with area. अब हम अपने आप कैसे लिंक कर सकते हैं? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम किसी पर्टिकुलर एरिया से पास करें, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये एक पर्टिकुलर एरिया है एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, तो दैट शोज क्लियरली कि यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि फील्ड लाइंस इज लिंकिंग टू द एरियाज. लेकिन जब मैंने ऐसे कर दिया, नो फील्ड लाइन विल क्रॉस लाइक दैट, तो एक या दो फील्ड लाइन यहाँ से पास हो पाएंगी. एक पर्टिकुलर एरिया से जब फील्ड लाइंस क्रॉस कर जाती हैं काफी सारी, दैट वी से दैट पर्टिकुलर एरिया या दैट पर्टिकुलर क्लोज सरफेस इज लिंक्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इस डायरेक्शन इज गिवन बाय अ यूनिट वेक्टर. उस वेक्टर की डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करता है. या सिंपल शब्द में कहें, फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू ds. और सिंपली आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज योर फ्लक्स. नाउ दिस फ्लक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिफाइनिंग अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, जहां से आपके क्वेश्चन हमेशा आता है, दैट इज योर गॉसेस लॉ. बहुत बार गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती हैं. कि बेसिकली गॉस लॉ क्या था? गॉस लॉ ने ये बताया कि किसी क्लोज सरफेस पे, पर वो सरफेस होना चाहिए सिमेट्रिकल. इन योर 12th स्टैंडर्ड वी जनरली कंसीडर सिमेट्रिकल सरफेसेस. तो उस पर्टिकुलर सिमेट्रिकल सरफेस में वी अप्लाई गॉस लॉ. इट इज अ क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ सरफेस या क्लोज सरफेस इंटीग्रल वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है सरफेस से लिंक होती है, इज गिवन बाय 1 by epsilon times the total charge enclosed in that surface. तो गॉस थ्योरम अपने आप यहाँ से स्टेट कर सकते हो. It states that closed surface integral, electric field in a closed surface integral is equal to, electric field in a closed surface integral is equal to 1 by the epsilon times the total charge enclosed in that surface. उस सरफेस पे कितना चार्ज इनक्लोज है. अब इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स. हर एप्लीकेशन में एक ही या 4 पॉइंट्स आप हमेशा याद रखेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे कोई भी एप्लीकेशन होगा, जैसे सिंगल एप्लीकेशन या 5 एप्लीकेशन है, सिलेबस में 10 है, सबका एक प्रोसीजर होगा. दे सेट प्रोसीजर टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. नंबर 1, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली जाए ड्यू टू सर्टेन पॉइंट चार्ज या लाइन चार्ज. अगर पॉइंट चार्ज की बात करें तो गॉसियन सरफेस डिसाइड करना होगा आपको. हर सबसे पहला पॉइंट है आपका टू फाइंड द गॉसियन सरफेस. तो गॉस थ्योरम को प्रोसीड करने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए हमारा सबसे पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गॉस लॉ एप्लीकेशन में सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू आइडेंटिफाई द गॉसियन सरफेस. सबसे इंपॉर्टेंट. इफ दिस पॉइंट इज राइट तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा. टू आइडेंटिफाई द गॉसियन सरफेस. नंबर 2 पॉइंट होगा आपका टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज phi इक्वल टू E इंटू ds. मीन्स ds की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी आपको. इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस पे कितनी वैल्यू आएगी उसकी, E इंटू ds की वैल्यू, वट एवर वैल्यू इट कम्स टू बी.
Third thing, you have to find the charge enclosed due to distribution of charge, due to type of distribution. Type of distribution means अगर चार्ज सिंपल पॉइंट चार्ज है तो वो क्यू ही रहेगा, लेकिन अगर वो लीनियर चार्ज के कारण है तो ऑब्वियसली लैम्डा इज क्यू अपॉन एल, तो क्यू आ जाएगा यहाँ लैम्डा एल, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें. फोर्थ पॉइंट इज इक्वेट फ्लक्स इक्वल टू 1/s0 टाइम्स क्यू. फ्लक्स की वैल्यू आपकी E into ds से मिल जाएगी. इन दोनों को इक्वेट करेंगे, यू विल फाइंड योर इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास आंसर आ जाएगा. इन्हीं 4 पॉइंट से आपको करना है. एग्जांपल दे देते हैं स्टूडेंट्स. एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर करते हैं. इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन की बात करें, अगर हम इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन कंडक्टर की बात करें, तो अगर वो लीनियर है, कंडक्टर इज लीनियर, तो उसका गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा? इट्स वेरी सिंपल टू इजी टू डिटेक्ट आल्सो. बहुत इजी है इसे डिटेक्ट करना. कैसे? जैसे मान लीजिए अगर हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, तो पॉइंट चार्ज के कारण जो गॉसियन सरफेस बनता था वो स्फेरिकल या सर्कुलर शेप में आप देख पा रहे हैं. हियर वी आर कंसीडरिंग 3D. तो क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्जेस, सो यहाँ पे 3D स्पेस की ही बात होगी, स्फेरिकल होगा. लेकिन ऐसे ऐसे खूब सारे पॉइंट चार्जेस अगर एक जगह पे हैं तो दे विल फॉर्म अ सर्कुलर अरेंजमेंट लाइक दैट, विच इज अ टाइप ऑफ सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट. तो इनफाइनाइट लॉन्ग शीट, not sheet, electric field due to linear conductor, infinite length का means अगर हम उस कंडक्टर की ऐसे बात करें, उसको हमने चार्ज दे दिया यहाँ पे एक लीनियर शेप कंडक्टर को, लाइक दैट. नॉट टाइप ऑफ गॉसियन सरफेस जो इसमें फॉर्म होगा, दैट विल बी ए सिलेंड्रिकल. अब यहाँ पे फील्ड लाइंस जा रही हैं, यहाँ इसका सरफेस है. सरफेस वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. अगर मान लीजिए ये सरफेस है, तो सरफेस वेक्टर दैट इज एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. यहाँ ds इज बेसिकली एरिया वेक्टर. तो यहाँ पे वो 90 बना रहा है, यहाँ पे अगेन इट इज मेकिंग 90 एंड इट इज हेयर, यहाँ पे क्लोज सरफेस है हमारा. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अलोंग द सेम एंगल, मतलब एक सेम लाइन पे लाइन ऑफ एक्शन है उनकी. तो here the theta is 0, तो here has flux has certain meaningful value. इस सरफेस पे और इस सरफेस पे there is no contribution. तो नंबर 1 पार्ट था हमारा टू डिटेक्ट गॉसियन सरफेस. तो यहाँ सिलेंड्रिकल सरफेस है गॉसियन सरफेस. here the गॉसियन सरफेस इज सिलेंड्रिकल. अब हमें सिलेंड्रिकल सरफेस में जो टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज ड्यू टू दिस लीनियर कंडक्टर, so it is a linear charge distribution. So here the first step is here Gaussian surface is a cylinder. Now second step E into ds, flux निकालना, that is E into ds. यहाँ पे ds के केस में you can find it is equal to 2 pi rl, क्योंकि यहाँ पे जो surface consider होगा वो होगा lateral surface area of cylinder. Lateral surface area of cylinder. So that is E into 2 pi rl. थर्ड थिंग जो आएगी यहाँ पे स्टूडेंट्स, टू थिंग्स आर क्लियर टू यू. दैट इज फर्स्ट स्टेप है गॉसियन सरफेस जो कि सिलेंड्रिकल है यहाँ पर. दूसरा स्टेप हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकालना. इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पता चल गया E into 2 pi r, यानी फाई की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे फाई की, दैट इज E into 2 pi r. थर्ड थिंग इज चार्ज enclosed is here. The charge is due to linear charge density, that is lambda is equal to q upon L. Q is here lambda L. Now charge is also specified, so this let it be first equation, let it be second, and fourth step क्या बोलता था? Step 4 बोलता था इक्वेट कर दो इनको, E into 2 pi RL equal to lambda L. Now it comes out to be उन फ्लक्स को 1/s0 times q के इक्वेट कर दो, तो it is 1/s0 times the total charge. So here it is L get cancelled, E is equal to lambda upon 2 pi r epsilon naught, या 2 pi epsilon naught r, whatever way you want to write. So this is the electric field due to infinite long wire. So student, this is the whole thing about your
electrostatics. I hope you enjoyed the video and just a brief snapshot of all the topics. Next time we'll make a small snapshot of current electricity topic. Till then, stay tuned with these things and revise them thoroughly.